Yes, students, very good morning to all of you. Fifth chapter was going on, and I think 5.2 last question is to be discussed, in which we'll see that with the help of the angles, how we can detect the two lines to be parallel. Let us start. Question number 6, and I'm starting with its first part. There are two lines. One is L, another is M, and there is a line N. And two angles which are given to us are 44 and 126. Two angles which are given to us are 44 and 126. Right? Now you see that we want to see that whether these lines are parallel or not. First of all, see what kind of angles are these. 126 and 44. They lie on the same side of transversal, and moreover, they are in the interior. So what it means, they are forming co-interior angles. So what should be the property of co-interior angles? Their sum should be 180. If it is so, the lines will be parallel, and if it is not so, the lines are not going to parallel. So let us check. Here 126 plus 44 is equal to 170 degree. जब हमने sum किया, sum comes out to be 170 degree. This implies co-interior angles are not supplementary. Therefore, L is not parallel to M. If the co-interior angles are not supplementary, then we can't say the lines to be parallel. They are non-parallel. L is not parallel to M, right? Let me make the second figure. So these are the given angles, and L and M are two lines. N is, you can say, transversal line, right? So how to start it? Those who have joined right now, just see this second part, and you will definitely able to do the first also. अब पिछले part के उसमें टेंशन में रहते हो, आगे कुछ भी नहीं सीख पाते. Otherwise, join your class well in time. Now see, this is L and M, and this is N. अब देखो जरा, this is exterior angle. ये lines का अंदर वाला हिस्सा है, and this is the outer side of the line. This is exterior angle, this is interior angle. We haven't done any of the relation between one exterior and one interior angle. हमने किया ही नहीं, या तो दोनों interior हो या दोनों exterior हो. So let us find this angle 1 first, ताकि दोनों interior हो जाए. So you will write angle 1 is equal to 75 degree vertically opposite angles. Agree? 1 and 75, they are vertically opposite angles. All of you agree? Chaliye. Now, these two are the interior angle, co-interior angle, because they lie on the same side of transversal. When the angles, they lie on the same side of transversal, they are co-interior. Let us check their sum. Angle 1 plus 75 degree, this 1 and 75. 1 की value कितनी है? 75. 150 आया, जबकि आना कितना चाहिए था? 180. So you will write again, therefore, as sum of co-interior angles is not equal to 180, degree. Therefore, L is not parallel to M.
L is not parallel to M. Fourth part बिल्कुल इसके जैसा है, that you will do yourself. Same concept is to be applied in fourth part. Yes, Karthik, what do you want to ask? Voice is not audible. Unmute करो पहले अपने आप को. बेटे unmute yourself. Voice is not audible to me. अभी भी नहीं. Yes, Gorish, you ask. Yes, ma'am. Am I audible? Yes, yes, you are audible. Yes, ma'am. Like इसी सम को अगर हम corresponding angles के साथ करें तो आंसर आ सकता है. Like अगर हम 75 के बिल्कुल साथ ही corresponding angles बना लें तो क्या हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है. फिर भी ये पैरेलल नहीं होगी क्योंकि दोनों इक्वली नहीं आएंगे. Yes, ma'am. ठीक है. Yes, ma'am. हाँ जी हरमीत, आपका क्या डाउट है? एक्सक्यूज मैम. मैम अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 है तब भी वो पैरेलल होंगे? बच्चे बहुत सारे रूल्स किए हैं हमने. को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 हो जाए तब भी लाइंस पैरेलल. ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए तब भी लाइंस पैरेलल. ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल हो जाए तब भी लाइन पैरेलल. कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाए तब भी लाइन पैरेलल. वी हैव डन सो मेनी रूल्स. हरमीत सिंह, एम आई क्लियर टू यू? यस मैम. चलिए. यस मैम. आप एक बार प्लीज आप. यस मैम. मैम एम आई ऑडिबल नाउ? यस यस. मैम मैंने भी वही गौरीश वाला ही पूछना था कि अगर हम जैसे उसको कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की तरह कर सकते तब भी तो यही आंसर निकलेगा ना कि वो पैरेलल है. कर सकते हो. दिस रूल कैन आल्सो बी अप्लाइड, राइट? चलिए. Fourth part is of the same category, so I would like to start with the, you can say, third part. Lines are L and M. Transversal is N. 123 degree, 57 degree. ठीक है. Now again one angle is interior, another is exterior. ये अंदर अंदर है तो इंटीरियर हुआ, ये एक्सटीरियर हुआ. No relation between them. So we have to find the other angle so that we can find the relation. Right? You write here angle 1. Write down. Angle 1 plus 57, 180, linear pair. So angle 1 is equal to 180 minus 57. This is 123. इसको आप एंगल 2 कहते, जो गिवन है ना इसको एंगल 2 कहते, और हमारा एंगल 1 आया 123. Now can anyone tell what kind of angles are angle 1 and angle 2? एंगल 1 एंड एंगल 2 कौन किस तरह के एंगल्स हैं? Yes, Jasmine. Ma'am, I think Jasmine. Ma'am, I think alternate interior angles. Jasmine, you tell. Alternate interior angles. Now you will write here angle 1 is equal to 2, each 123. Therefore, alternate interior angles are equal. This implies L parallel to M. जितने भी रूल्स हमने किए उनमें से एक भी रूल अगर सेटिस्फाइड हो जाए तो we can say that the lines are parallel. Yes, Harmeet. मैम वो आंसर देने के लिए किया था. चलिए. लेट अभी ना असाइनमेंट राइट नाउ आई एम नॉट हैविंग, सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट चैप्टर. बाद में फिर कर लेंगे असाइनमेंट, कोई बात नहीं. हम रैशनल नंबर्स, नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद रैशनल नंबर्स एंड यू ओपन अप योर बुक्स एट पेज नंबर 173. बाद में कर लेंगे असाइनमेंट, फिर अभी मेरे पास है नहीं नोट्स असाइनमेंट के. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी. मैम जो आपको होमवर्क स्लिप्स में आपने जो होमवर्क दिया था मैम, उसमें आपने जो स्टार्टिंग वाला होमवर्क दिया था उसमें आपने कहा था ट्राई दीज करने हमने फेयर कॉपी में. मैम उसके हमने सारे पार्ट्स करने हैं ट्राई दीज के कि कोई 1 या 2 पार्ट? एक तो जो मैं लीव करूंगी वो तो करना ही करना है, बाकी एनी 2 यू ओके हैव, मैम. राइट? चलो. चैप्टर 9 रैशनल नंबर्स.
एक्सक्यूज मी मैम, एंड मैम जो ट्राइडीज के साथ हमने जो अपने डेफिनेशंस कुछ प्रॉपर्टीज लिखवाई है वो भी लिखनी है हमने। वो लिखनी है। आदित्य, आपका क्या डाउट है? आदित्य महाजन। मैम जो आपने कल होमवर्क दिया था मैम वो तो आपने करवाया नहीं मैम, वो 7 चैप्टर का कल आपने होमवर्क दिया था मैम, वो भी फिर कर ले हम। तो करना ही है बेटे, होमवर्क तो करना ही होता है, उसमें परमिशन लेने की क्या बात है? मैं चैप्टर नहीं अभी शुरू करवाया ना, मेरे को ऐसा लगा। क्या? व्हाट आर यू सेइंग? मैम मैम अभी आप 9 चैप्टर शुरू करवा रहे हो मैम, कल आपने 7 चैप्टर का होमवर्क दिया था। तो कल तो 7 चैप्टर चल रहा था, कल 7th का ही होमवर्क देना था। एक्सक्यूज मी मैम, लाइक बाय मिस्टेक मैम, हम आपने अभी 5th चैप्टर exercise- कर रहे थे तो एक्सरसाइज और होमवर्क आपने स्लिप पे आपने exercise 7 7 चैप्टर का होमवर्क दे मान दिया। लिया। It's okay, you Yes, can ma'am. well understand it. चलिए, let us start with the next chapter, that is rational numbers. You know, we have done number line, and I have told you number line is divided into 2 parts by 0. Positive integers on the right side of the 0 and negative integers they lie on the left side of the 0. After that, after discussing integers, we have discussed the decimals numbers. We have done the chapter fractions and decimals, in which we have learned about fractions, about decimal numbers, right? These kind of numbers we have done. Can anyone tell me that when we were doing fraction chapters, these are the fractions, have I discussed any kind of fraction like with the negative sign? यस मैम। कोई ऐसी फ्रैक्शन आई थी जिसका साइन नेगेटिव हो? मैम आई थी मैम। अच्छा, कहाँ आई है? मुझे भी दिखा दो। मैम आपने मैम कॉन्सेप्ट करवाया था इस चीज का, आई थिंक आपने जो प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन बनाई और थी, प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन। उसमें मैम प्रॉपर्टीज ऑफ डिवीजन और प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन आपने कुछ प्रॉपर्टीज करवाई थी जिसके अंदर इसका आपने हमें कॉन्सेप्ट समझाया आप था। बताओ, कहीं फ्रैक्शंस में आपने नेगेटिव फ्रैक्शंस देखी हो? मैम आपने सिर्फ प्रॉपर्टीज में कॉन्सेप्ट कराया था, जैसे -1 Yes, ma'am. मल्टीप्लाइड में 100 इज इक्वल टू, ऐसे का कॉन्सेप्ट आपने कराया था। प्रॉपर्टीज कोई ऐसी करवाई नहीं हुई मैंने। कार्तिक, यू वांट टू गिव द आंसर? सो आई मूव। यस मैम। मैम अपनी प्रॉपर्टीज, मेरा भी उनके वाला सेम आंसर है कि कोई नहीं, हमने अगर कोई कोई फ्रैक्शन इंटीजर वाले आता है तो की हमको तो कोई प्रॉपर्टी नहीं बन थी, जाती है। फ्रैक्शन वाले चैप्टर की कोई प्रॉपर्टीज ही नहीं थी। आप लोग नहीं आंसर दे पा रहे हो, बट आई वाज एक्सपेक्टिंग कि आप दे दोगे आंसर। चलो आप मुझे ये बताओ, ये भी फ्रैक्शंस हैं? इतनी बात बता दो, आर दे यस फ्रैक्शंस? मैम। Yes. Anyone who are in favor of Gorish, say yes. It is, yes, they are fractions. शुभ, क्या ये इधर जो मैंने लिखी है -4/3 -2/3 ये भी फ्रैक्शंस हैं? वैभव wants to give the answer. Yes, Vaibhav, you speak. Yes, ma'am. Vaibhav, speak up. Ma'am, I think yes. Vaibhav, I want to talk to you. Shubh is saying yes. Yes, ma'am. Vaibhav, Yes, ma'am. Vaibhav भी yes कह रहा है। हाँ जी, मैम आई थिंक इट इज फॉर्मिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीजर्स। मैंने वैभव से पूछना है एक बार आंसर। वैभव, यू टेल। एक्सक्यूज मैम। हाँ जी, Yes, ma'am. वैभव, गिव मी द आंसर। Yes, ma'am. अच्छा, ये भी फ्रैक्शंस हैं। चलो, सारे बच्चों को लग रहा है कि -4/3 -2/3 ये भी फ्रैक्शंस होती है। तो इसका मतलब जब मैंने आपको फ्रैक्शन की डेफिनेशन बताई, किसी ने भी अच्छे से नहीं सुनी। आपको याद है जब मैंने फ्रैक्शंस करवाया था चैप्टर, मैंने आपको बोला था कि आपको कोई हाफ हिस्सा दे सकता है, 1/2 पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी आपको कोई दे सकता है। कोई आपको -1/2 पार्ट ऑफ द प्रॉपर्टी देता है? कभी नहीं। नो मैम। आपको कोई केक का 3/4 पार्ट दे सकता है। क्या आपको कोई केक का -3/4 पार्ट दे सकता है? आपको कोई केक का 2/5 पार्ट दे सकता है? क्या आपको कोई केक का -2/5 पार्ट दे सकता है? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था बेटे, जब हमने फ्रैक्शंस करी थी, कि फ्रैक्शन कांट बी नेगेटिव। फ्रैक्शन कभी नेगेटिव नहीं होती। याद आया कि नहीं? यस मैम। आया ना याद? यहाँ पे डेफिनेशन में भी लिखा हुआ है डेफिनेशन में लिखवाया था फ्रैक्शन कांट बी नेगेटिव, राइट?
बट यहाँ ma'am. पे जब हमने सारे नंबर सिस्टम को डिस्कस किया, इंटीजर्स डिस्कस किए, फ्रैक्शंस डिस्कस की, डेसिमल नंबर डिस्कस किए, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव फ्रैक्शंस जो है, नेगेटिव साइन फ्रैक्शन के साथ जो है वो तो डिस्कस ही नहीं हुआ, वो तो छूट गया। उन्हीं को कवर करने के लिए, उसी को कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, चैप्टर नंबर 9 which is known as rational numbers. So सबसे पहले we'll write the definition. What is definition? A number which is of the form p by q, where p and q are integers and q not equal to 0 is known as rational number. A number which is of the form p by q, where p and q are integers and q not equals to 0 is known as rational number. ऐसे नंबर को हम बोलते हैं कि ये नंबर रैशनल नंबर होगा। इसका मतलब नंबर को रैशनल नंबर बनने के लिए 3 चीजें जरूरी हैं। पहली चीज, it should have numerator, मैं n से डिनोट कर रही हूँ, and denominator d से। It should have numerator and denominator. इसका न्यूमिनेटर भी होना चाहिए, डिनोमिनेटर भी होना चाहिए। सेकंड क्या होनी चाहिए, both numerator and denominator, both numerator and denominator should be integer. Should be integer. This is the second, you can say, property. Third, value of denominator should not be equal to 0. Should not be 0. Value of denominator should not be 0. It should have numerator and denominator. Anji Saksham Smart, what do you want to ask? यस मैम, मैम अपने p एंड q आर इंटीजर्स के नीचे का लिखा है And q not equal to 0. And तो 3 चीजें आपने देखा करनी है, न्यूमिरेटर डिनोमिनेटर दोनों होने चाहिए, राइट? दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर शुड बी इंटीजर्स। एंड जो नीचे डिनोमिनेटर है वो कभी 0 नहीं हो सकता। आप कोई इस बात को जस्टिफाई कर सकता है कि डिनोमिनेटर 0 क्यों नहीं हो सकता? कोई एग्जांपल किसी को याद आ रहा हो जो मैंने कभी दिया हो कि डिनोमिनेटर कभी 0 नहीं हो सकता? हाँ जी देवांग। मैम अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो फिर डिवाइड भी नहीं होगा ना। इप्सा यू टेल। आपने प्रॉपर्टी में बताया था कि अगर मैम हाँ जी इप्सा बोलो। मैम अगर डिनोमिनेटर 0 होगा तो डिनोमिनेटर काउंट नहीं होगा क्योंकि 0 की वैल्यू ही नहीं होती कोई, तो फिर वो फ्रैक्शन ही नहीं रहेगी। नहीं, ये भी कोई वो लॉजिकल आंसर नहीं है। गौरिश कुछ याद आ रहा है? मैंने बहुत अच्छा जिसमें मैं याद आ रहा है मैम, आपने इंटीजर्स चैप्टर में प्रॉपर्टीज में बताया था कि 0 कभी नीचे आ ही नहीं सकता क्योंकि 0 हमेशा बड़ा ही होता है, और अगर हम 0 को नीचे लिखेंगे तो कोई आंसर आ ही नहीं सकता, नॉट डिफाइंड आ जाएगा, और अगर 0 ऊपर आएगा तो 0 आएगा। मैम इतना याद आ रहा है। 0 कभी नीचे नहीं आ सकती। मैंने आपको एग्जांपल दिया था, 0 सबसे छोटी थी, रो रही थी कि मेरे को सबने छोटा छोटा बोलना है, तो भगवान जी ने उसको क्या वरदान दिया था कि तेरे को कभी कोई नीचे नहीं बैठा सकेगा। ठीक है ना? That's why when we are discussing rational numbers, हमने q की वैल्यू को 0 निकाल दिया। हमने कहा कि q you can't be 0। क्यों? क्योंकि 0 नीचे आ ही नहीं सकती। अगर नीचे 0 आ जाती है तो वो रैशनल नंबर नहीं होगा। इज इट क्लियर? सो एक नंबर को रैशनल नंबर होने के लिए 3 चीजें सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। इट शुड हैव न्यूमिनेटर, इट शुड हैव डिनोमिनेटर, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर बोथ शुड बी इंटीजर्स, एंड डिनोमिनेटर शुड नॉट बी 0। ये है हमारी पूरी रैशनल नंबर की डेफिनेशन, राइट? अब मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगी। हमने किया था, इधर मैं थोड़ा सा कंपेयर करके बताऊंगी, रैशनल नंबर, फ्रैक्शन।
2/5, 3/7, 9/8 rational number. -2/5, -3/7, -9/8 they are also rational numbers. Why? क्योंकि ये इंटीजर है, ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, ऊपर भी इंटीजर, नीचे भी इंटीजर, तो ये भी रैशनल नंबर्स हो गए, ठीक है। ऑन द अदर हैंड साइड 2/5, 3/7, 9/8, 5/7, 6/8, आप डिफरेंस देख रहे हो? जब मैंने रैशनल नंबर्स लिखे और जब मैंने फ्रैक्शंस लिखी, आपने कोई डिफरेंस नोटिस किया? एनी डिफरेंस यू हैव नोटिस्ड? Hurry up, raise your hand. I am writing here rational numbers. On the other side, I am writing fractions. Any difference you have noticed? Raise your hands. शुभ, कोई डिफरेंस नजर आता है आपको? मैम माइनस साइन है रैशनल नंबर में। बिल्कुल ठीक, रैशनल नंबर्स वाली साइड पे माइनस साइन भी आ सकता है, राइट? क्योंकि इंटीजर है माइनस वाले भी, बट फ्रैक्शंस में कभी माइनस साइन नहीं नहीं आता। तो यहाँ से नेगेटिव नहीं होती। हाँ, फ्रैक्शन नेगेटिव नहीं होती। यहाँ से हम क्या, यहाँ से हमने क्या डिड्यूस किया? नोट लिखो, यहाँ से हमने क्या डिड्यूस किया? राइट डाउन द नोट। यहाँ से हमने ये नोटिस किया, ये ऑब्जर्व किया, नोट लिखो, दैट every fraction is a rational number, but every rational number need not to be a fraction. एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर। हर फ्रैक्शन पेपर में आ जाता होता है 1 मार्क में घूम फिरा के, ठीक है। एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर नीड नॉट बी ए फ्रैक्शन। हर रैशनल नंबर फ्रैक्शन हो जरूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब नेगेटिव साइन आ जाता है तब वो फ्रैक्शंस नहीं बनते। एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर नीड नॉट बी ए फ्रैक्शन, ठीक है। मान लो आपको पेपर में एक क्वेश्चन आता है, which of the following is not a fraction? Which of the following is not a fraction? Raise your hands. Jasween, Ipsa, Saksham Smarth, Harmeet Singh, Akshara. Hanji Harmeet, you tell. Ma'am, second -2 and 3. -2/3 because फ्रैक्शन कांट बी नेगेटिव, राइट? ऐसे क्वेश्चन घूम फिरा के आ सकते हैं, तो आपने कॉन्सेप्ट्स को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हो गया। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर, हमने जैसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस फाइंड करनी सीखी थी ना, आपको याद होगा। मान लो यहाँ पे 2/3 मैंने आपको एक फ्रैक्शन दी है, फ्रैक्शन के चैप्टर से चलते हैं, रैशनल नंबर भी है ये। इसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस कैसे फाइंड करते थे, याद है किसी को? बोलो। यस मैम, इसको मैम हम 2/2 और 3/3 इस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 4/6, 6/9 एंड सो ऑन। मेथड है, आगे क्वेश्चंस आएंगे, हम करेंगे। देन कम टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। वेरी इजी, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर। जिस रैशनल नंबर का साइन माइनस होगा, याद रखना न्यूमिनेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं।
नेगेटिव साइन अगर डिनोमिनेटर में है तो हम उसको न्यूमिनेटर में लिख सकते हैं, हमें पता है ये, ठीक है। अगर 5/-6 है, आई कैन राइट इट -5/6. So negative rational number is having negative sign in front of it and positive rational number is having positive sign in front of it. Hands down कर लीजिए अगर कोई क्वेरी नहीं है, पिछले हैंड रेज्ड है तो it distract me then. चलिए ठीक है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रैशनल नंबर. Come to the next. Try these, page number 176. Page number 176. Try these. First is -2/3. Which of these are negative rational numbers? तो आप अपने आप देख सकते हो. -2/3, 0 is neither negative nor positive. ठीक है, -2/3. अब कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव. बेटे ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, कट हो जाएगा, क्या बन जाएगा? पॉजिटिव. ठीक है, तो अगर दो जगह माइनस है फिर तो वो नेगेटिव हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव गेट कैंसिल, इट बिकम्स पॉजिटिव. ठीक है, रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन, दिस वी विल डू व्हेन वी विल डू द क्वेश्चन. नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, पेज नंबर 177. पेज नंबर 177. Standard form of the rational number. Page 177. Concept is standard form of rational number. Standard form of rational number. Standard form का भी मैंने थोड़ा सा आगे आइडिया दिया हुआ है, चलिए हम दोबारा इसको करते हैं. मान लो हमारे पास एक नंबर है 45/-40. हमें उसने बोला कि इस रैशनल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का मतलब क्या होता है? विल डू द कटिंग टिल द कटिंग इज पॉसिबल. एक बंदा अपनी कटिंग करवाने गया, ठीक है, बार्बर के पास, तो आप बताओ तब तक उसकी कटिंग होएगी जब तक वो गंजा ना हो जाए. अगर जब बंदा गंजा हो जाए उसके बाद इसकी कटिंग कर सकते हैं? नहीं ना. तो हम इसको तब तक कटिंग करेंगे जब तक कटिंग पॉसिबल है. मैंने 3 के टेबल पे की 15/-10. अभी ये पूरी तरह से गंजा नहीं हुआ, अभी कटिंग पॉसिबल है. अब हम इसकी 5 के टेबल पे कर सकते हैं. फर्दर कटिंग हो सकती है? नहीं हो सकती ना. इसका मतलब जब कटिंग, जिस स्टेप के बाद कटिंग इम्पॉसिबल हो, यानी कि फर्दर कटिंग ना हो, उस स्टेप पे जो आंसर होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. क्या बोलते हैं उसको? स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर. ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज का थोड़ा ध्यान देना, अभी भी स्टैंडर्ड फॉर्म आई नहीं है, अभी थोड़ी सी गड़बड़ है. क्या है वो गड़बड़? लेट मी टेल यू. स्टैंडर्ड फॉर्म में हमेशा माइनस का साइन आपने ऊपर लिख के आना है पेपर में. गलत करके आते हैं बच्चे. ये होगी स्टैंडर्ड. ठीक है, इज इट ओके? यस मैम. अब मान लो ये एमसीक्यू आता है, व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ -45/30, और आपके पास ऑप्शंस आते हैं 3/-2. सेकेंड ऑप्शन आई एम राइटिंग -3/-2. थर्ड ऑप्शन आई एम राइटिंग -3/2 एंड फोर्थ आई एम राइटिंग नन. तो कौन सा टिक करके आओगे? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन रैशनल नंबर? हाँ जी चितेश, आप बताओ. थर्ड ऑप्शन. बिल्कुल ठीक, थर्ड ऑप्शन -3/2, जिसमें माइनस ऊपर है और जिसमें हम कटिंग कर चुके हैं. और एक चीज आपको और बताऊं, ये तो मतलब मैंने एग्जांपल के थ्रू बताया ना कि कटिंग जब तक पॉसिबल है तब तक करते जाओ, और जब लास्ट आ जाए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं. मैथमेटिकली पता कैसे बोलते हैं? जब दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर. कटिंग इम्पॉसिबल कब होएगी? कटिंग इम्पॉसिबल है, ये लेमैन की लैंग्वेज है. मैथमेटिकल क्या है कि नो कॉमन फैक्टर इन
numerator and denominator. When there is no common factor in numerator and denominator, rational number is said to be in the standard form. लिख लो, लिखो, मैं डिक्टेट करवाती हूँ. When there is no common factor, when there is no common factor in numerator and denominator, in numerator and denominator, and the negative sign is in numerator, the negative sign is in numerator, when there is no common factor in numerator and denominator and negative sign is in numerator, then we say that rational number is, then we say that rational number is in its standard form. Then we say the rational number is in its standard form. I am repeating, when there is no common factor between numerator and denominator and negative sign is in numerator, then we say the rational number is in its which form? Standard form. Standard form, right? So this is a definition, and on the board I have written the explanation of the standard form. Hope so it is clear to you. And let us start with the next question. Page number 178 पे try these. एक मैं करती जा रही हूँ, जो छोड़ रही हूँ वही आपका होमवर्क है. Page number 178, try these. I am doing second part. Here it is minus 12 by 18. Change it in the standard form. That means do the cutting. Some of the children, they do it in the table of 6. They get minus 6 by 9. But right now it is not in standard form because further cutting is possible. So answer is minus 2 by. This is the standard form of the given rational number. अब नेक्स्ट आपको आता ही है कंपैरिजन बिटवीन टू रैशनल नंबर्स. कंपैरिजन आपको पता है नेगेटिव नंबर हमेशा पॉजिटिव नंबर से छोटा होता है. पहला कंपैरिजन तो ये है. दूसरा कंपैरिजन, अगर डिनोमिनेटर सेम हो, मान लो पहला कंपैरिजन ये होता है कि नेगेटिव नंबर इज ऑलवेज स्मॉलर देन द पॉजिटिव नंबर. अभी हम करेंगे क्वेश्चंस, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ वैसे. और कंपैरिजन क्या होता है, हियर इज अ नंबर 2 by 3 एंड अ नंबर 5 by, नहीं 2 by आप 7 ले लो, एंड ए नंबर 3 by 7. कौन सा नंबर बिगर होगा? मैम 3 by 7. By 7. अगर डिनोमिनेटर सेम हो तो जिसका न्यूमिनेटर बड़ा दैट इज बिगर. ठीक है, ऐसे हमने कंपैरिजन सीखे थे. और अगर हमारे पास डिनोमिनेटर सेम ना हो तब हम कैसे कंपैरिजन करते थे, याद है किसी को? मैम ये एलसीएम निकालते थे. एलसीएम निकाल के. बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक. So this is all about which we are going to discuss in exercise 9.1. One more concept is there, but I would like to teach it in the end of the exercise क्योंकि वो थोड़ा different है, कभी किया नहीं है, मुश्किल भी है. इसलिए जब पूरी एक्सरसाइज खत्म कर लेंगे then I will teach that concept, right? Excuse me मैम. हाँ जी. मैं एक और कंपैरिजन नहीं कि अगर -2 by 3 और -1 by 3 हो जाए तो फिर -1 by 3 बिगर होगा. मैं और कुछ लिखते हूँ, जैसे हम लिखते हैं -5 by 3 -2 by 3. हाँ, नेगेटिव साइन के साथ अगर डिनोमिनेटर सेम है, स्मॉलर द नंबर बिगर विल बी इट्स वैल्यू. पता है ना हमें बेटे, जब डिनोमिनेटर सेम हो ना तब कंपैरिजन वैसे ही किया करो जैसे हमने इंटीजर्स में किया. इनको छुपा लो तो आपको पता है which one is bigger, -2. -2. Okay, so we will continue tomorrow. So we will start with the exercise tomorrow. और देखते हैं अभी अगर बाकी टीचर्स कहेंगे कि पहले असाइनमेंट करवानी है लाइंस एंड एंगल्स की, तो पहले लाइंस एंड एंगल्स की असाइनमेंट करवा देंगे. इसके हमारे कॉन्सेप्ट खत्म हो गए, आप लिख लेना कॉपी पे, फिर हम इसकी एक्सरसाइज शुरू कर देंगे बाद में. ठीक है, टिल देन टेक केयर.